मीनिंग एंड एप्लीकेशन। बहुत सोचा मैंने कि हाउ टू स्टार्ट दिस टॉक ऑफ वेव फंक्शन, एंड एक ही रास्ता मुझे सबसे अच्छा दिखा, दैट डोंट स्टार्ट विद वेव फंक्शन. So I am starting with the general approach, physics. So physics is a study of nature. I think everybody will agree with me here. And nature is made up of matter and waves. What is matter? Matter is this glass, this water pouring into the glass, and the stand, the table on which the glass is placed. Everything is matter. We as a human beings are matter. And the earth and the solar system, everything is matter. So when you disturb the matter, so disturbance propagates into the matter and it creates waves. So nature is made up of only two things, matters and waves. So I thought maybe we should be on the same page when I speak about matter and waves in the further talk. So let me introduce them very briefly. So what is matter? Matter is found everywhere. As I told you, everything is matter, which is made up of elements. So to study the motion of matter, we have the concept of particle. पार्टिकल क्या है? पार्टिकल का एक कंसेप्ट है. पार्टिकल की अगर मैं क्लियर साइंस डेफिनेशन बोलूं तो इट इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हैविंग मास. सो इफ इट इज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट then it has no finite extension in any of the dimensions. So how can an object be point like? So इसके लिए physicists are using the approximate definition of the particle. That is, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अपना साइज उसके जो पाथ ऑफ मोशन है उसके लेंथ से कम है, बहुत कम है. So it can be considered as particle. Like Earth here can be considered as particle because वो जो सन के आसपास रिवॉल्व करता है, सन और अर्थ का डिस्टेंस इज सो लार्ज कंपेयर्ड टू अर्थ्स ओन डायमीटर, इट इज 12,400 समथिंग, 12,400 किलोमीटर और 12,800. तो इस अर्थ को हम जब वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है तब हम इसको पार्टिकल कंसीडर करते हैं. अब ये पार्टिकल का कंसेप्ट है वो मैटर के मोशन को स्टडी करने के लिए है, और पार्टिकल के पास कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है, मास एंड चार्ज. If we know the force on the particle, we can know its position at different instances because every particle follows Newton's law of motion. Okay, तो जो न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन का इक्वेशन अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें x of t मिलेगा. x of t means x as a function of t means position of the particle at different instances of time. अगर हमें x of t मिल गया तो उसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करके वेलोसिटी मिलेगा पार्टिकल का, उससे मोमेंटम मिलेगा पार्टिकल का, उससे पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस हमें फोर्स से जो पार्टिकल है उसका पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा. सो if we solve this equation, we know everything about the particle. And when we know everything about something, we know that we say that in physics that we know state of that thing. We know the state of the particle. If we know everything about the particle, there has to be known. That means we know the state of the particle. Let us cut to the waves. So what is a wave? Wave is a disturbance in a medium or a matter or in a matter. So let if you have a string, आपके पास एक string है, आपके पास एक दोस्त भी है, आप दोनों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, और अभी 3.5 वाला जो एस्ट्रॉइड आने वाला था वो भी बिना टकराए चला गया है, तो आपको लगा चलो कुछ काम करते हैं. तो जो स्ट्रिंग है उसको आप एक एंड से पकड़ के उसको शेक करना स्टार्ट करते हो. सो व्हाट यू क्रिएट इज अ प्रोपागेटिंग वेव. यू क्रिएट अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. सो दिस वेव हैज सम प्रॉपर्टीज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज. वी ऑल नो दिस प्रॉपर्टीज. When this wave travels, its velocity is given by f lambda, means its multiplication of frequency and wavelength. अभी ये जो वेव ट्रैवल करता है, उस वेव की अगर हम बात करें, इस वेव की जो डिस्प्लेसमेंट है, मींस जो मीन पोजीशन से एट एवरी x एंड एवरी टाइम, एट एवरी पोजीशन एंड एवरी टाइम जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, वो एक वेव इक्वेशन फॉलो करता है. जो वेव इक्वेशन हर एक टाइप के वेव्स के लिए अलग अलग है. वाटर वेव्स के लिए अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अलग है, और ये वेव्स इन अ स्ट्रिंग के लिए ये जो इक्वेशन है वेव इक्वेशन कुछ इस टाइप का. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, मींस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट डिफरेंट पोजीशन एंड टाइम. अगर हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि कब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाता है, उसी ये जो y है उसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी होते हैं अगर वेव हार्मोनिक है.
So we know the frequency of the wave, we know the wavelength of the wave, and we know the phase of the wave from this same y. अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो फॉर अ स्ट्रिंग वी नो एवरीथिंग अबाउट द स्ट्रिंग. सो हियर ये इक्वेशन को सॉल्व करने से वी नो द स्टेट ऑफ द सिस्टम. ओके, लेट अस कट टू सम ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ द वेव दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन. आपका दोस्त भी सामने अकेला खड़ा है, उसको बोरिंग लग रहा है, तो वो भी अपना हाथ शेक करना स्टार्ट करता है और वहां से स्ट्रिंग में वेव्स बनाना स्टार्ट करता है. सो व्हेन टू वेव्स मूव फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टू अ सिंगल पॉइंट, दे सुपरइम्पोज ऑनटू ईच अदर. तो वहां का दैट पॉइंट जो एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड का एडिशन होता है. ओके, तो अगर ड्यू टू इनिशियल फेज मींस अगर इनिशियल पोजीशन जैसे आपके दोस्त ने डिफरेंट डायरेक्शन से वेव को स्ट्रिंग को जर्क करना स्टार्ट किया और या फिर इस डायरेक्शन से ही वेव को जर्क करना स्टार्ट किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट इंटरफेरेंस पैटर्न्स मिलती है. अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उसमें कभी मैक्सिमा आता है, कभी मिनिमा आता है. सो दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स, दे प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न. कभी नहीं देखोगे कि दो पार्टिकल्स यानी कि दो पोल्स एक इधर से और एक इधर से आएगा, बीच में इंटरफेरेंस करके एक दूसरे की इफेक्ट को नलीफाई कर देगा जैसे इसमें हो रहा है. कभी नहीं देखोगे. दैट इज द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी ऑफ वेव्स. तो लेट अस मूव ऑन टू समथिंग एल्स. अभी अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि अगर पार्टिकल बहुत छोटा है दैट वी कैन नॉट सी इट, हाउ टू नो दैट इट इज अ पार्टिकल. अगर वेव है उसका ये एम्पलीट्यूड और उसका जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा है दैट वी कैन नॉट सी इट लाइक दिस, so how to know that it is a wave? Answer is simple, interference. So Thomas Young found out that light interferes, so it is a wave. We all know the Young's double slit experiment. Then James Clerk Maxwell came and very beautifully from the use of symmetry he explained that light is not a simple wave, it is an electromagnetic wave. It is an electromagnetic wave का मतलब क्या है? Electromagnetic wave का मतलब है कि जो लाइट है उसमें जैसे हम स्ट्रिंग्स में वेव्स बनाते हैं ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही ऑसिलेट करता है. उसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट करता है. तो उन दोनों के परपेंडिकुलर जो तीसरा डायरेक्शन है उसमें वो वेव ट्रैवल करती है. इट इज अ प्रोपागेटिंग वेव. मींस ये मेरे एरो के साथ आप देखेंगे ये जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है, वो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे. सो मैक्सवेल ब्यूटीफुली प्रूव्ड दैट इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. So after some time, a guy called J.J. Thomson came and he found out from the cathode ray experiments that electron is a particle, because Thomson ने जो इलेक्ट्रॉन था उसका चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड आउट किया. इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड आउट किया, and we know that charge and mass are the property of particles. इनके पास ये नहीं होता. So he concluded that electron is a particle. Now moving on to 3 years later, Max Planck and Albert Einstein, what happened was that black body radiation was unknown to everybody and the scientists were not able to explain the black body radiation. So Max Planck came to forefront and he suggested that light also behaves as a particle in black body radiation. He actually suggested the energy quantization, and Albert Einstein came and completed his theory and said that light behaves as well as wave as well as particle. So light has a dual nature. Albert Einstein said that light behaves as a wave. It was clear from interference effects. When Albert Einstein said that light is a particle, he was able to explain the black body radiation and photoelectric effect, for which he received the Nobel Prize. Einstein ने जब black body radiation समझा दिया बोल के कि light has a dual nature, पर हमारे पास experimental evidence नहीं था light के photon होने का. We can explain the photoelectric effect, but हमारे पास actual experimental evidence तब आया जब आर्थर ओनली कॉम्पटन ने कॉम्पटन इफेक्ट से बताया कि light has a particle nature. तो यहाँ पे क्लियर होता है कि light has a dual nature. Light has a dual nature. Let us pause here for a moment. एक सेकंड के लिए राह देखते हैं और देखते हैं what do we mean by the dual nature of light. क्या आप अपने आप से सवाल करिए कि क्या आप लाइट को ड्यूअल में इमेजिन कर पाते हैं क्या? If you can imagine it something as a wave and a particle together. आपके दिमाग में कोई पिक्चर आ रहा है? अगर पिक्चर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आ रहा है तो आई हैव टू से दैट इट इज मिसलीडिंग, बिकॉज अवर इंट्यूशंस, हमारा अभी तक का जो नॉलेज है, जो विजुअलाइजेशन पावर है,
वो उसके लिए बिल्ड ही नहीं हुए कि हम उसको एक साथ अपने दिमाग में विजुअलाइज कर पाए। हम अगर उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब है हम जो लैंग्वेजेस बोलते हैं उसमें भी हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। So we need to resort to another language to explain the dual nature of light, and that language is called the language of mathematics. So we need to know mathematics a little bit to do quantum mechanics or the understanding of dual nature. But उसको अभी के लिए छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, और हम एक बहुत अच्छे एक सिमेट्री पे मूव ऑन करते हैं। जैसे 1923 में आर्थर और कॉम्पलेट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, तभी सेम ईयर में एक हिस्टोरियन टर्न फिजिसिस्ट लुई डी ब्रॉय और लुइस डी ब्रॉगली ने ऐसा प्रपोजिशन किया, he made a proposition, he made a hypothesis कि जो फोटोन है उसका मोमेंटम p इक्वल टू h बाय लैम्डा है। फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट। फोटोन जो है उसका मोमेंटम p इक्वल टू h बाय लैम्डा है। उसने प्रोपोजिशन किया कि अगर ये सेम मोमेंटम किसी पार्टिकल का भी हो सकता है, क्यों, किस बेसिस पे उसने ये हाइपोथेसिस रखा? तो बेसिस ये था कि उसने बोला कि अगर लाइट जिसको हम इतने टाइम से वेव समझते थे, इट टर्न्ड आउट टू बी अ पार्टिकल। लाइट जिसको हम इतने टाइम से वेव समझते थे, इट टर्न्ड आउट टू बी अ पार्टिकल। तो अभी जब जिसको पार्टिकल समझते हैं, जैसे कि हम सब, या फिर एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और एनीथिंग, अभी तक हम जिसको पार्टिकल समझते हैं वो भी वेव्स क्यों नहीं हो सकता? वो भी वेव्स क्यों नहीं हो सकता? He made a proposition based on this symmetry, and from this symmetry he explained that every matter, like all of us, every matter is a wave, and that wave's wavelength is given by lambda equal to h upon mb. अगर वो मैटर ट्रैवल कर रहा है, every moving particle is a wave, he proposed like that, और मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी v है, उसका मास m है, और h है उसका प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये फोटोन की सिमेट्री से उसने मैटर की सिमेट्री, मतलब वेव, अगर लाइट वेव था तो वो पार्टिकल है, तो हम लोग पार्टिकल है तो हम वेव है, उसने सिमेट्रिकली इस बात को बताया। और उसने बाद में जो बोर मॉडल था तब तक का नोन, उसमें उसने प्रूव किया इस बात। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इट मींस। तो अगर हम लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv मानते हैं लुई डी ब्रॉय का सजेशन, तो कोई भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती है, और p की जगह हम h अपॉन लैम्डा अगर रखेंगे पार्टिकल के लिए, तो h²/2m लैम्डा स्क्वायर। तो अगर हम पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी या फिर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करते हैं, तो पार्टिकल की वेवलेंथ चेंज होगी, या फिर अगर पार्टिकल का मास चेंज होता है तो पार्टिकल की वेवलेंथ चेंज होगी। इसका मतलब ये है, तो हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, जैसे जो कोई लाइट होती है, नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी होते हैं, उनकी वेवलेंथ फिक्स्ड होती है कि एक्सरे की इतनी है, रेडियो वेव्स की इतनी है। पर हम मैटर वेव्स में अगर मैटर को प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी दी जाए तो उसकी वेवलेंथ हम ट्यून कर सकते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आ रहा है जो हम एंड में डिस्कस करेंगे इसका एप्लीकेशन। जस्ट कीप इन माइंड फॉर नाउ कि हम जो भी पार्टिकल है उसको हम वेव की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और वो वेव्स को डी ब्रॉय ने नाम दिया मैटर वेव्स नाम दिया। अभी ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा, अगर सोशल मीडिया की लैंग्वेज में कहूँ तो वायरल होने लगा। और वायरल होते होते ये पहुंचा पीटर डीबाई के पास, और पीटर डीबाई जस्ट मेड अ रिमार्क टू इरविन श्रोडिंगर, इफ एवरी मैटर इज अ वेव देन इट शुड आल्सो फॉलो अ वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने इस बात को सीरियसली लेके जब वो लोग नेक्स्ट टाइम मिले, तब उसके पास एक वेव इक्वेशन रेडी था जो कि मैटर वेव को सपोर्ट करता था। यहाँ पे एक सेकंड और रुकते हैं। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ये श्रोडिंगर्स इक्वेशन कोई भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला प्रूफ नहीं अवेलेबल है। यू कैन नॉट प्रूव दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, यू कैन यूज सम इंट्यूशंस टू रीच आउट टू दिस इक्वेशन, बट यू कैन नेवर प्रूव दिस इक्वेशन। जैसे हम मैथ्स में कोई थ्योरम प्रूव करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, ठीक है। अभी ये इक्वेशन में थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। इक्वेशन को एनालिसिस करते हुए हमें पता चलता है कि जैसे वेव्स इन अ स्ट्रिंग का इक्वेशन था, उसमें जो y था वो उस स्ट्रिंग का डिस्प्लेसमेंट था। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें तो जो क्वांटिटी वेरी करती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वाटर वेव्स में देखें तो वाटर वेव्स की हाइट वेरी करती है। तो उन सबको वेव इक्वेशन में ऐसे डिफरेंशियल्स में रखा जाएगा, उनका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है जिस टर्म का, उसको श्रोडिंगर ने नाम दिया वेव फंक्शन, क्योंकि एक वेव इक्वेशन था और उसका जो सॉल्यूशन है वो एक फंक्शन देगा, दैट इज अ वेव फंक्शन।
श्रोडिंगर ने बहुत अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया और इसका नाम दिया वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन मैं इसलिए यहाँ पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि वेव फंक्शन का मतलब क्या है। वेव फंक्शन का मतलब वही है कि अगर स्ट्रिंग में देखें तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑसिलेट हो रहा है, अगर साउंड वेव्स में देखें तो प्रेशर ऑसिलेट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है। ऐसे ही जो मैटर वेव्स में जो क्वांटिटी ऑसिलेट होती है इट इज कॉल्ड साई, इट इज कॉल्ड साई, इट इज रेड एज साई। ये जो त्रिशूल जैसा सिंबल है वो त्रिशूल जैसा सिंबल एक्चुअल में मैटर वेव्स का ऑसिलेशन दिखा रहा है, ये मैटर वेव्स का ऑसिलेशन ही है। अभी ये साई को हमने वेव फंक्शन बोला, एक सेकंड के लिए रुक के सोचते हैं कि फंक्शन का मतलब क्या है। ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसलिए इसको वेव फंक्शन बोला। एक सेकंड के लिए रुक के सोचते हैं कि फंक्शन का मतलब क्या है। So what is the meaning of function? So function is something like this: f of x equal to sin x is one function, f of x equal to cos x is another function, f of x equal to x square is another function. अब ये फंक्शन में क्या होगा, हम x की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो यहाँ पे हमें f of x की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। मैं लेमन की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, और स्ट्रिक्टली मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में नहीं, पर अगर हम x की डिफरेंट वैल्यूज डालेंगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यूज चेंज होगी और हम हर बार हर एक फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे इसमें x की वैल्यू चेंज करके f of x को प्लॉट करना हो, ये जो लाइन है f of x का मैग्नीट्यूड दिखाती है और ये जो कर्व है sin x दिखाता है, हम सबको पता है। ये जो कर्व है वो cos x दिखाता है और ये जो कर्व है वो x स्क्वायर दिखाता है। x स्क्वायर में ये जो लाइन है वो x की चेंजिंग वैल्यूज है, ये जो लाइन है वो f of x का मैग्नीट्यूड, ये जो लाइन है वो f of x का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर यही फंक्शन में टू डायमेंशन में बात करूं तो टू डायमेंशन का मतलब है दो वेरिएबल। अगर मैं इसी फंक्शन को दो वेरिएबल में बात करूं तो sin x plus y और cos x plus y का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जैसे वो वाटर वेव्स होते हैं वैसे sin x plus y और cos x plus y का ग्राफ आएगा। f of x y equal to x square plus y square जो टर्म है, x square plus y square जो टर्म है उसका ग्राफ how will it come? It will come like a parabola, it is a cup, it is a cup। तो जो ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है वो इट इज कमिंग इन टू डायमेंशन। सो ये सारे टू डायमेंशनल फंक्शंस हैं। तो फंक्शन को इजीली समझने के लिए again I am repeating, it is not mathematically 100% correct, but easily समझने के लिए you can think of it as a black box, जहाँ पे आप बहुत सारे वेरिएबल्स एंटर करते हो, it can be मल्टी वेरिएबल और एंड में आपको कोई एक वैल्यू मिलती है। सो इट इज अ ब्लैक बॉक्स, फंक्शन कैन बी थॉट ऑफ। कोई भी वेव फंक्शन है, कोई भी वेव फंक्शन वो एक फंक्शन है। ठीक है, कोई भी वेव फंक्शन जो फंक्शन है, फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कोई भी फंक्शन को प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि ये sin x का मतलब क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ sin x, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ cos x, देन वी विल बी थिंकिंग कि इनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, दे आर जस्ट सम मैथमेटिकल टर्म्स। सो these functions at least these functions are mathematical, these functions are mathematical। so let me move ahead। so what in same year what Max Born suggested that psi of t is also a function, it is also that kind of function which can be plotted, but it has no physical significance like sin x or cosine x or x square or any function you can think of। तो जो psi of xt है फंक्शन है जिसको हम प्लॉट कर सकते हैं, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, ये मैंने जो फंक्शंस बनाए हैं, ये फंक्शंस मैंने एक्चुअली कहाँ से बनाए हैं, तो ये वेव फंक्शंस है हार्मोनिक ऑसिलेटर के, जिसके बारे में हमें अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें ये क्वांटिटी जो है IH कट मतलब h/2π, h कट का मतलब है h/2π, ये कांस्टेंट है, psi by del t, ये h square upon 2m मास पार्टिकल का कांस्टेंट होगा, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। सिर्फ पोटेंशियल जैसे जैसे चेंज करेंगे हम आसपास का पार्टिकल के आसपास का, वैसे वैसे उस पार्टिकल का वेव फंक्शन चेंज होगा। तो अगर वो पार्टिकल हमने स्प्रिंग से हाइपोथेटिकली अगर उस पार्टिकल को हमने स्प्रिंग से बांध के रखा और थोड़ा सा एक्सटेंशन देके छोड़ दिया है, so its wave function will look like this in atomic domain। मैं एटॉमिक डोमेन वर्ड क्यों यूज मैंने किया वो मैं उस पे थोड़ी देर अभी के लिए psi of xt has no physical significance, it has really no physical significance, then why we are finding psi of xt? Okay, why we are finding psi of xt?
So Max Born suggested, again brilliantly from the symmetry, like Max Born suggested that psi of xt is a probability of finding a particle at position x and time t. What is psi of xt? Mod psi of xt square means psi of xt into psi of xt star. It's when you multiply it with its complex conjugate, you get the probability of finding the particle at position x and at time t. अब यहाँ पे मुझे एक सेकंड और रुकना चाहिए, और बताना चाहिए कि मैंने यहाँ पे मॉड साई स्क्वायर क्यों लिया और सिर्फ डायरेक्ट इस वेव फंक्शन का स्क्वायर क्यों नहीं किया। ठीक है, तो उसमें अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि जो वेव फंक्शन है वो एवरी टाइम इन जनरल इट इज अ कॉम्प्लेक्स, मतलब जैसे हम नॉर्मल फंक्शन को ऐसे एक्स वाई जेड एक्सिस में प्लॉट करते हैं, तो वेव फंक्शन होता है वो एक्स वाई जेड एक्सिस पे तो डिपेंड करता ही है, वो एक और जो इमेजिनरी लाइन बोलते हैं हम जिसको, उस पे भी डिपेंड करता है, दैट लाइन ऑफ आई पे भी डिपेंड करता है। अभी वो ऐसा क्यों है? दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी एंड बिकॉज दैट हम मैटर वेव्स को एक्चुअल में हम कभी मैटर वेव्स को अपने आप से ऐसे देख नहीं पाते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इट मैथमेटिकली फर्स्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं, और हम जब भी पहुंचते हैं इस बात पे कि वेव फंक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स, तो हम थोड़ा रुक जाते हैं, यार वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स है, हम इसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, इसको छोड़ दें। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि वेव फंक्शन हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू नो दैट वेव फंक्शन कैन बी प्लॉटेड, एनी graph in imaginary axis can also be plotted. Imaginary axis is just providing us another dimension to look onto the things. वो कुछ एक अलग और डायमेंशन देता है हमें जो चीजों को देखने का, that is the fourth dimension we talk about. It is just suggesting pi/2 phase difference from our usual axis. So it is just giving us another dimension. Mathematically, there is no such thing as physically this wave function is not in 4 dimensions. But mathematically it is easy to analyze it in 4 dimensions. So it has no physical significance, but its mod square is a probability, gives us the probability of finding a particle at position x at point at time t. इसको समझते हैं कि कोई भी वेव फंक्शन होगा। अब ये वेव फंक्शन है क्या? ठीक है, वेव फंक्शन क्या है? मैंने किसी एक पार्टिकल को यहाँ पे एक फिक्स एंड है, मान लीजिए यहाँ से मैंने एक यहाँ पे पेंडुलम बनाया। यहाँ पे अगर मैंने एक पेंडुलम बनाया, उस पेंडुलम को मैंने स्लोली रोटेट किया, अगर वो पार्टिकल एटॉमिक है और वो सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो उसको हर एक जगह पे फाइंड कर उसका जो वेव फंक्शन होगा, ऑसिलेशन का फंक्शन, वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, उसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बट नॉट डूइंग इट राइट नाउ। उसका जो स्क्वायर है, मॉड स्क्वायर है, वो ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पार्टिकल है, अगर हम नॉर्मल टर्म्स में देखें कि अगर हमारे पास एक बॉल है, जैसे कि ये, अगर हमारे पास एक ये फिक्स एंड है और हमारे पास उससे लटकी एक बॉल है, तो ये जो बॉल है ना, उसको हम यहाँ पे ऐसे छोटा सा एक ऑसिलेशन अगर देंगे, तो ये जो छोटा सा ऑसिलेशन है, वो उसमें बॉल को हर एक पॉइंट पे फाइंड हम कर सकते हैं। कभी भी हम कभी भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे खड़े रहे तो यहाँ भी बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है जितनी यहाँ पे होती है और जितनी यहाँ पे होती है। क्लासिकल इंट्यूशन ये कहता है, when we go into the quantum domain, what happens is its probability changes. मतलब कि अगर वो पार्टिकल को हमने यहाँ से ऐसे यहाँ से छोड़ा है, तो उसकी यहाँ पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और उसके बाद बीच में कोई एक जगह आती है जहाँ पे उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसके बाद एक जगह आती है जहाँ पे उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी अगेन 0 है, उसके बाद अगेन ज्यादा है, अगेन 0 है। And these are 4 energies. मतलब अगर आपने पार्टिकल को थोड़ा और ज्यादा एनर्जी दिया तो बीच में पार्टिकल कभी मिलेगा ही नहीं, उससे थोड़ा और ज्यादा दिया तो बीच में मिलेगा, यहाँ पे 2 जगह कभी पार्टिकल नहीं मिलेगा, आप कभी भी डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उससे थोड़ा ज्यादा एनर्जी दिया तो पार्टिकल इन तीनों जगह पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पार्टिकल ये सारी जगह पे अगर नहीं मिलता, तो हम देखते हैं कि हमारी जो यूजुअल इंट्यूशंस है, जो हमारी इंट्यूशंस जो आज तक बिल्ड हुई है, तो नॉर्मली हमारी इंट्यूशंस नॉर्मल अपने आसपास की दुनिया को देख के बिल्ड हुई है, वो तो यही कहती है कि अगर वो पेंडुलम है, उस पेंडुलम को हर एक जगह होना चाहिए इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। मैं कभी भी देखूं तो एक जगह पे अगर देखता भी रहूं मैं, तो वो पार्टिकल जो है जो पेंडुलम पे ऐसे ऐसे
ऑसिलेट हो रहा है वो यहाँ पे इतनी ही बार पहुंचना चाहिए जितनी बार यहाँ पे पहुंच रहा है। सब जगह पहुंचने का उसका जो नेचर है वो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम एटॉमिक लेवल हम कुछ और देखते हैं, ठीक है। हम क्यों ऐसा देखते हैं वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो, बट हम देखते हैं और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है तो हमें मानना। तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ इसमें कि आगे बढ़ के क्या करते हैं कि हम एक और केस लेते हैं। उसी सेम केस में अगर मान लीजिए कि मैंने बॉक्स लिया और उस बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, ठीक है। ये उसके एग्जैक्ट वेव फंक्शंस नहीं है, ये आई एम जस्ट गिविंग यू अ डेमो। इसमें हमने बॉक्स को बांध दिया अगर, और ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करेगा अगर, ठीक है, अगर यहाँ पे टकरा के यहाँ पे जाएगा और हमने एक ऐसा पोटेंशियल रखा है तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हार्मोनिकली ले जाएगा, तो इट्स वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी विल लुक लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? लेट अस अगेन फॉर सम टाइम। देखिए यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है, मुझे इलेक्ट्रॉन कभी दिखेगा नहीं क्योंकि इट इज अ वेरी स्मॉल पार्टिकल, वी हैव नेवर सीन इलेक्ट्रॉन, वी हैव ओनली सीन इट्स ट्रेजेक्टरी, वी हैव नेवर सीन इलेक्ट्रॉन। तो मुझे इलेक्ट्रॉन को दिखेगा नहीं, तो मुझे इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना है। तो मैं आपको पूरा एक थॉट एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रियली लेबोरेटरी में आई डोंट नो परफॉर्म हो सकता है कि नहीं, बट वी कैन इजीली परफॉर्म इट इन अवर माइंड, ठीक है। हम अपने माइंड में इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन है, मतलब कि वो वेव फंक्शंस, वेव जो होता है वो स्पेस में स्प्रेड होता है, मतलब वो एक पॉइंट पे लोकलाइज्ड नहीं होता, सेम पॉइंट पे नहीं होता, इट इज स्प्रेडेड इन द स्पेस। अभी जो वेव है वो स्पेस में स्प्रेड हुआ तो हमें लगेगा ये तो पार्टिकल है, वो तो लोकलाइज्ड है, और जो वेव है वो तो स्प्रेड होगा अगर मान लीजिए इसके अंदर। तो हाउ कम वेव गिव इट्स स्टेट और हाउ कम फ्रॉम इट्स वेव नेचर वी कैन नो अबाउट द पार्टिकल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट ऐसा करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है, मान लीजिए वो इस एनर्जी लेवल पे है, तो उसके पास इतनी एनर्जी है कि उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा है, उसके वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए कि अभी वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जा रहा है और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन में देख नहीं सकता हूँ, तो मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है, छोटा सा, बहुत छोटा, इट इज नो डायमेंशन, ऐसा मान सकते हो इन रेडियल डायरेक्शन, बट इट इज एक्चुअली लॉन्गर। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जो भी प्रोब है, जिसे मैं प्रोब कहता हूँ, कंडक्टिंग वायर, उसको मैं इस बोतल में डाल के देखूंगा। अगर इस बोतल में से मुझे करंट मिलता है इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैंने अगर इस पॉइंट पे, अगर इस बोतल के इस पॉइंट पे मैंने अगर उस प्रोब को डाला तो मुझे छोटा सा करंट डिटेक्ट हुआ, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड हुआ है। तो उस वायर को ग्राउंड करूंगा तो करंट इलेक्ट्रॉन ग्राउंड के थ्रू वो एक वोल्ट मीटर में छोटा सा रीडिंग देगा, मान लीजिए, लेट अस मेक दैट अजम्पशन। तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे जो प्रोब रखूंगा और मैं यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे रखूंगा और यहाँ पे रखूंगा, आई विल प्लेस प्रोब एट डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। अभी मैंने अगर यहाँ पे प्रोब रखा है तो मैं चेक करता हूँ, प्रोब डाल के मैं जस्ट निकाल लूंगा, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इट इज ओके, अगर नहीं आया तो इट इज ओके, ठीक है। मैंने चेक किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है कि नहीं, मैंने यहाँ पे चेक किया, 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 आई जस्ट चेक्ड एवरीवेयर, आई स्कैन्ड इट, आई स्कैन्ड दिस बॉटल। अगर मैं स्कैन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये जो मिडल पार्ट है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन कभी मिला ही नहीं। मैं कितनी भी बार वहां पे प्रोब डाला, मैंने मान लीजिए हर एक जगह पे प्रोब 500 बार डाला, तो मिडल पार्ट है वहां पे मुझे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिला, ठीक है। इन दो जगह पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन मुझे बहुत बार मिले, बहुत बार मिले, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही है। बस अभी ये कहने का मतलब इतना ही था कि इससे मुझे ये पता चलेगा। अभी मान लीजिए इस जगह पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस जगह पे एट पोजीशन x एंड टाइम t इट्स प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय mod psi ऑफ xt²। अगर इस जगह पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, मान लीजिए 20%, इस जगह पे फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी है 50%, इस जगह पे प्रोबेबिलिटी है 0, इस जगह पे बहुत कम है, तो क्या होगा? What do we mean by 20% probability? 20% probability से हमारा ये मतलब है, हमारा मतलब है कि हमें अगर हम 100 बार मेजर करेंगे उस जगह पे प्रोब रख के, जैसे ये बोतल में अगर हम 100 बार इसी जगह पे प्रोब रख के मेजरमेंट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन उसमें से 20 बार वहां पे मिलेगा, अगर इस जगह की प्रोबेबिलिटी 20% है, ठीक है। अगर हम प्रोब रख के इस जगह पे 100 बार मेजरमेंट करेंगे तो हमें
वहां पे इलेक्ट्रॉन कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की 0 है। तो यहाँ पे करेंगे इस जगह पे प्रोब डाल के, अगर हमने 100 बार वहां पे प्रोब डाल के निकाला और इन सिस्टम को इनफ टाइम दिया, टाइम क्यों दिया वो मैं बाद में बताता हूँ, पर सिस्टम को अगर हमने इनफ टाइम दिया फिर से सेटल डाउन होने का, और फिर से उसी एनर्जी में अगर सिस्टम है, उसी स्टेट में अगर सिस्टम है, फिर से हमने मेजर किया, ठीक है, तो वहां पे 50 बार इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, अभी मैं मेजरमेंट के बारे में बहुत आगे जाके आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों ये बोला कि इसी स्टेट में सिस्टम है, होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें समझना है कि 20% प्रोबेबिलिटी का मतलब 20% इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, या तो प्रोब में इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन विल बी डिटेक्टेड एज ऑलवेज अ पार्टिकल, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन विल बी डिटेक्टेड एज अ पार्टिकल, बट जब तक हम डिटेक्ट नहीं करते तब तक इट विल बिहेव एज अ प्रोबेबिलिस्टिक वेव। जो इलेक्ट्रॉन का मैटर वेव है इज रियली अ प्रोबेबिलिस्टिक वेव, इफ वी सी इट क्लोजली, तो बस इलेक्ट्रॉन का जो मैटर वेव है वो हमें प्रोबेबिलिटी देता है। ये वेव के ऊपर अगर मैं देखूं, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, अगर मैं ये कोई हाइपोथेटिकल वेव फंक्शन है, अगर मैं इस हाइपोथेटिकल वेव फंक्शन को मैं देखूं तो मुझे पता चलेगा कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, इस पॉइंट पे ज्यादा है, और इस पॉइंट पे 0 है। ये भी फिर से हम सोचते हैं एक बॉटल है उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का पोटेंशियल दिया है कि ऐसा कुछ वेव फंक्शन हमें मिले। तो हम यहाँ पे एक सेकंड पॉज करके फिर से सोचते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 20% है, मतलब कि हम 100 बार मेजर करेंगे उसमें से 20 बार मिलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपैरेटिवली यहाँ से, और यहाँ पे 0, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअल में कि जब तक इट induces some inherent indeterminacy in the system, until when we are not measuring the system, until when we are not measuring the system, it is behaving as a wave. Until when we are not measuring the system, it is behaving as a wave, and when we are detecting, we are finding a particle. We are always finding a particle. So until and unless we are detecting the in the system, electron will behave as a probabilistic wave. यहाँ पे इनहेरेंट इंडिटरमिनेंसी आई है, वो क्या है कि अगर मैं अपने सामने एक बॉटल में बॉल को रखूं, बॉल को, तो बॉल मुझे मूव होते हुए दिखेगा, एंड आई कैन प्रिसाइजली से बाहर से कि वो बॉल यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर वो वहां पे इस इंस्टेंस पे हो सकता है, इफ आई एम सेइंग दैट, तो मैं वहां पे मेजर करूंगा तो बॉल मुझे वहीं पे मिलेगा, ठीक है। देयर इज अ रीजन टू इट जो हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट जब मैं इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की बात करता हूं, जब मैं सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करता हूं, तो क्या होता है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को मैंने एक बॉटल में पैक रखा है, कोई एक प्रॉपर पोटेंशियल में उस इलेक्ट्रॉन को रखा है मैंने, कोई एक एक्सटर्नल पोटेंशियल में, तो व्हाट इज हैपनिंग इज कि हम बाहर से अगर उस इलेक्ट्रॉन को देखें तो हमें इलेक्ट्रॉन तो दिखेगा नहीं, हमें मेजर करने के लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करना पड़ेगा सिस्टम में, मतलब हमें कोई प्रोब इंसर्ट करना पड़ेगा सिस्टम में, और वो जो प्रोब है वो प्रोब क्या करेगा, प्रोब या तो इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, पर हम पहले से श्योर नहीं हो सकते कि यहाँ पे 20% प्रोबेबिलिटी है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी मिल ही जाएगा। अगर हम थियोरेटिकली कैलकुलेशंस की बात करें, अगर हम थियोरेटिकल कैलकुलेशंस की बात करें, तो एक्सपेरिमेंटली तो हमें इलेक्ट्रॉन आइदर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर हम अगर एक्सपेरिमेंट से पहले अगर हम प्रेडिक्ट करना चाहे कि हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर हम एक्सपेरिमेंट से पहले प्रेडिक्ट करना चाहे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन दैट एक्सपेरिमेंट से पहले हमें ये वेव फंक्शन दिखेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखेगी, ये इट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ साइन। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है वेव फंक्शन की, इट सेज दैट इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर विद finite probabilities everywhere. Here there are zero probabilities, but electron can be here, can be here, can be here. So theoretically we cannot say that electron is always here. This is the beauty of quantum mechanics. This is really the beauty of quantum mechanics, because when I was talking about the Newton's law, हमें अगर x of t मिल जाता तो we can say that particle is here at this time and here at that time. We can always predict the exact position of the particle. जैसे कि आज हमने एस्ट्रॉइड को प्रेडिक्ट किया था कि वो अर्थ के पास से निकलेगा, we have predicted that asteroid. हम अर्थ के मोशन को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि it will reach the same point on its revolution after 365 days, ठीक है, तो वो अर्थ सेम पॉइंट पे पहुंचेगा, we can always predict it, but जो theoretical calculation है वो ही quantum mechanics में ऐसा है कि we can actually never find the particle at some exact position theoretically.
वेव फंक्शन ही हमें मिलेगा. दिस इज ऑल वी कैन नो अबाउट द पार्टिकल एंड दिस इज रियली द ब्यूटी ऑफ द पार्टिकल. आप सोचिए, इट इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज कि आप जब तक देखोगे नहीं मेजर करके तब तक आप उसके बारे में नहीं कह सकते कुछ. You can never predict theoretically. You can never predict theoretically with 100% certainty that particle will be here or will be here. This is the beauty of quantum system, and this has been experimentally verified by Davison and Germer. So I am not making this up right now. It has been experimentally verified by Davison and Germer and the son of J.J. Thomson, J.P. Thomson. So J.J. Thomson proved that electron is a particle, and J.P. Thomson did electron diffraction experiment or electron interference experiment, and he showed that electrons also interferes. So it is also behaving as a light. So beautiful. Father proved that electron is a particle, and son proved that electron is a wave, and both got Nobel Prize for their astonishing discoveries. अभी अगर हमें वेव फंक्शन का एग्जैक्ट मतलब समझ में थोड़ा आ रहा है कि वेव फंक्शन का तो कुछ मतलब है नहीं, तो वो समझना है नहीं, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन. अगर उसका मोड स्क्वायर हमें प्रोबेबिलिटी देता है, सो लेट अस चेक कि इस रीजन में, ये dx जितने रीजन में पार्टिकल की फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या है. एंड इट टर्न्स आउट कि इतने रीजन में जो पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, साइन ऑफ xt मोड स्क्वायर इनटू dx, मतलब इस एरिया का एरिया अंडर द कर्व. This area under the curve gives the probability of finding the particle at between x and x plus dx. Okay, at time t. तो ये है probability of the particle. अभी हम बात करें एक और चीज की. And what is that? That is something else, that when what happens is when the particle is there. अगर पार्टिकल है, मान लीजिए बोतल में पार्टिकल है, तो अगर मैं बोतल के स्टार्टिंग से एंड तक स्कैन करना स्टार्ट करूंगा तो पार्टिकल कहीं तो मिलेगा मुझे. दैट इज फॉर श्योर. सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन दिस एंड एंड दिस एंड हैज टू बी 1 टोटल. यहाँ पे 0.2 प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 0.3 है, इट इज 0 एंड अगेन 0.3 है. ओवरऑल टोटल प्रोबेबिलिटी हैज टू बी 1. सो टोटल प्रोबेबिलिटी between minus infinity to plus infinity, we are considering the particle in a small bottle. पर अगर वो particle की bottle को खोला जाए, and if it is in a potential from minus infinity to plus infinity, and also we have to find particle between that. So total probability of finding the particle between those 2 points, that means total area under that this curve is always 1. This is called normalization of wave function. Wave function is always normalized. Probability of finding the particle in the whole region is always 1, because particle is always there. Particle is always there. You scan every point of the space, you will always find the particle. Okay. So particle at same time, if you scan every point of the space, you will always find the particle. So this is called the normalization of the particle. Okay. So now let us move on to something else. We are moving here. Before that, just let me make a quick remark on infinity and minus infinity. So what we mean by the word infinity? Infinity is not a number. Infinity is not a number. आप जितना बड़ा number सोच सकते हो, the biggest number you can think, infinity is bigger than that. Infinity is always bigger than that. So infinity is never a number. So the wave function has to go 0 at infinity, because infinity is not a place, so we can never find a particle at infinity. Okay, and same with minus infinity. I'm talking about right now. I'm talking about the one-dimensional motion of the particle. Okay, so I have made this quick remark. Just keep that in mind. Now, again, another question rose, that if I do a measurement. And if I do a measurement at this point, if I find the particle at this point, if I find the particle at this point, then where was the particle just before the measurement? Now here again I am specifying what do I mean by the just before the measurement word. I mean 1 सेकंड पहले नहीं, 0.5 सेकंड पहले भी नहीं. आप जितना नजदीक सोच सकते हो नाउ से, जितना नजदीक टाइम सोच सकते हो, द टाइम ऑफ मेजरमेंट से जितना नजदीक, उससे भी ज्यादा नजदीक. सो टेंडिंग टू नाउ, आई एम टेंडिंग टू नाउ फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जस्ट बिफोर द मेजरमेंट, when we are finding the particle here now,
So just before the measurement, there was the particle. Hello. Sorry to interrupt me, sir. Huh? Actually, we cannot see your pointer. Oh, I'm sorry. Just a second. It's okay. Is it visible now? Yes. Continue. Sorry for the interruption. So if we are finding the particle at this point, if we are finding the particle at this point, I'm repeating this whole part. So if I'm doing the measurement now, if I'm finding the particle at this point, so if I'm finding the particle at this point now, the question is where was the particle just before the measurement? Where was the particle just before the measurement? And this question got a very beautiful theoretical aspect. When we try to solve it theoretically, where was the particle before the measurement? Okay, so when we try to solve it theoretically, we get three kinds of answers. Three kinds of answers means the first answer is a realist answer. The particle was at this point only just before the measurement. So you measured it and it was there. Just before the measurement, particle was here only. So you measured it there only. Okay, so this is the realist response, which was actually advocated by Albert Einstein and his fellows. अगर ये बात सच है कि पार्टिकल यहीं पे था, हमने मेजर किया उससे जस्ट पहले, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा थ्योरी गलत हो सकता है. बिकॉज व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर पार्टिकल हमने मेजर किया उससे जस्ट पहले वहीं पे था, तो हम थियोरेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल यहीं पे था. अगर हम थियोरेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पार्टिकल वहीं पे था, तो वेव फंक्शन का मतलब क्या है? What do we mean by this probability distribution? अगर हमें पता ही है कि पार्टिकल वहीं पे था, तो ये probability distribution का मतलब क्या है कि पार्टिकल यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी ये है, यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी ये है. So what do we mean by this whole quantum mechanics theory? So it is all gone in vain. It is all gone, मतलब वो निरर्थक हो गया पूरा quantum mechanics का theory, अगर ऐसा है. So there is another response to that also. So realist वाला response है, there is another response to that. That is orthodox response, which Niels Bohr and his followers follow. Orthodox response ये कहता है कि यहाँ पे हमने measure किया, तो पार्टिकल इससे पहले कहीं था ही नहीं. पार्टिकल इससे पहले ये प्रोबेबिलिस्टिक वेव था. It was spread out in space. It was spread out in space. It was not localized at a single point. It was our act of measurement that forced the particle to move here. You say I am repeating this line. It was our act of measurement that forced the particle to put this position. So the act of measurement not only disturbs the what we have to measure, but it also produces what we have to measure. So पहले ये wave function था, ठीक है? तो ये इसका मतलब था हमने measure किया उससे पहले कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और थी, हम थियोरेटिकली देख सकते हैं. जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर लिया, तो ये पूरा वेव फंक्शन का कोई मतलब ही नहीं है कि यहीं पे मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी इंस्टेंटली कि पार्टिकल इसी पोजीशन पे था, अभी है, तो अभी है ये पार्टिकल इसी पोजीशन पे है. तो पहले जो भी वेव फंक्शन था उसका क्या हुआ? तो वो पूरा वेव फंक्शन इसी पॉइंट पे पूरा शिफ्ट हो गया और यहीं पे पार्टिकल की मिलने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई कंप्लीटली, और यहाँ पे सब जगह प्रोबेबिलिटी अचानक से 0 हो गई जैसे हमने मेजरमेंट किया. सो the orthodox people put it this way that measurement not only disturbs the system but they produce what we are measuring. हमने जो सिस्टम पहले था वेव फंक्शन का उसको डिस्टर्ब करके वेव फंक्शन यहाँ तो आया ही है मेजरमेंट करके, तो हमने ही वो मेजरमेंट प्रोड्यूस किया. मतलब कि हमने यहाँ पे प्रोब रखा और वो मेजरमेंट जो एंड में मिला हमें, वो ये जो वेव फंक्शन था, अगर हमने यहाँ पे प्रोब रखा ही नहीं होता तो वो मेजरमेंट कभी बनता ही नहीं. ऑलवेज शुड हैव बिहेव्ड एज अ वेव. ये चीज भी सोचने में बहुत नॉन इंट्यूटिव है, बहुत नॉन इंट्यूटिव है. कि अगर हम देखें कि जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके पीछे जो भी चीज है अभी वहां पे वो कुछ नहीं है और एक बड़ा सा वॉल्केनो है, और आप अगर मुड़ के देखते हैं तो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग. तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं इस अपनी यूनिवर्स की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि वॉल्केनो आपके पीछे होने की प्रोबेबिलिटी थी, इट वाज फाइनाइट प्रोबेबिलिटी, पर आपने मेजरमेंट करके आपके सिस्टम को बिगाड़ दिया और आप अपने घर में बैठ गए. ठीक है, तो इट इज लाइक दैट. A very beautiful anecdote between Einstein and Bohr I am remembering.
आइंस्टाइन और बोहर के बीच का एनेक्डोट ऐसा था कि आइंस्टाइन रोड पे चले जा रहे थे बोहर से बात करते हुए। आइंस्टाइन रियलिस्ट थे, तो वो कह रहे थे कि पार्टिकल यहीं पे था पहले से, ये अनसर्टेनिटी कुछ नहीं होता पार्टिकल में, पार्टिकल होता है तो होता है और नहीं होता है तो नहीं होता है। बोहर थे, वो ऑर्थोडॉक्स थे कि पार्टिकल पहले वेव था, व्हेन वी मेजर वी फाइंड इट एज अ पार्टिकल, वी मेजर इट एज अ पार्टिकल। तो क्या है, ये जो ऑर्थोडॉक्स और रियलिस्ट के बीच में अल्बर्ट आइंस्टाइन और बोहर बात कर रहे थे, और अल्बर्ट आइंस्टाइन रोड पे चल रहे थे और अचानक पीछे से एक कार आई और बोहर ने आइंस्टाइन को खींच लिया साइड से, रोड से फुटपाथ पे, और वो कार स्पीड में वहां से चली गई। कार्ड था वो एक्चुअल में, हॉर्स कार्ड, वो वहां से स्पीड में चला गया। अब बोहर ने बोला कि अरे आइंस्टाइन देख के तो चलो रोड पे, अभी वो हॉर्स कार्ड तुमसे टकरा था। आइंस्टाइन ने बोला मैंने वो हॉर्स कार्ड तो देखा ही नहीं, इसका मतलब वो वहां पे था ही नहीं। And we are not measuring, we are not producing anything. Einstein took it this way. All these things are relevant only in atomic order. It is not relevant in our actual our domain. Means हमारा जो डोमेन है, जो 5-7 मीटर वाला, 5-7 किलोमीटर वाला, उसमें भी काम नहीं करता और बड़े डिस्टेंसेस में भी काम नहीं करता। It works in atomic domain, very small domain. उसका रीजन मैं टॉक के एंड में फिर से बताऊंगा। There was another group of people who were agnostic, कि वो आंसर ही देना मना कर देंगे। अगर आप अभी यहाँ पे मेजर करोगे पार्टिकल तो अभी आपको यहाँ मिला, अब आप पूछोगे कि इससे पहले कहाँ मिला था, तो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन ही अभी की है, तो हम इससे पहले का कैसे बता पाए। अगर हम अभी मेजर कर रहे हैं तो हम इससे पहले का कैसे बता पाए कि क्या था। अगर मेरा हाइट बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, तो मैं अभी मेरा हाइट ये है, तो मैंने अभी अपना हाइट मेजर किया, मान लीजिए 178 सेंटीमीटर, तो आप कैसे बता सकते हो कि मेरा हाइट 11 साल में ऐसा था, आपने तो मेजर ही नहीं किया। सो इट इज समथिंग लाइक दैट, आई एम गिविंग एनालॉजीज, बट इट इज समथिंग लाइक दैट। सो एग्नोस्टिक पीपल सेड दैट हमने मेजर किया ही नहीं, सो वी डोंट नो, वी डोंट वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो देयर वर 3 डिफरेंट अप्रोचेस टू प्रपोज दिस सिंगल क्वेश्चन। अभी क्या हुआ कि बेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे प्रूव हो गया, आई एम नॉट टेलिंग यू द एक्सपेरिमेंट राइट नाउ, बट उससे प्रूव हो गया, just take my word for it, experimentally it is verified that realist and agnostic are wrong and orthodox are right। मतलब जब तक हम मेजर नहीं करते तब तक कोई पार्टिकल वेव होता है, probabilistic, it is a probabilistic wave, and when we are measuring we are producing the result we are measuring। okay, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है W.H. ब्रैग की। ब्रैग डिफ्रैक्शन, X-ray diffraction, the Bragg's law is there in X-ray diffraction, 2D sin theta equal to n lambda। He said something very beautiful about this quantum mechanics and this nature of it, कि अभी जो है हम now is the time of measurement and future is wavy and past is particle। हमने past में सब कुछ measure किया हुआ है, so it is a particle and future is wavy। We don't know what is happening in the future, we will make the future। Actually we are measuring the future and we are shaping it the way we want। actually the future is wavy। it is very good statement, it is really very good statement। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि जो हमारा फ्यूचर होगा उसमें हम जो काम करेंगे, ठीक है, अभी अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे और हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, सो अवर कंट्री विल फाइट कोरोना एंड विल विन कोरोना वेरी इजीली। तो अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं तो हम अपने फैमिली को बचाएंगे, और अगर हम नहीं रखते तो क्या होगा, हमें कोरोना होने का चांस है। सो इट इज लाइक दैट कि फ्यूचर में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, वी हैव टू चूज which way we have to take the measurement। अगर हम इस रास्ते जाते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे, इस रास्ते में ऐसे होंगे, एंड वंस वी आर मेजरिंग इट इज 100% श्योर दैट यही होने वाला था। ठीक है, यही हुआ, इट इज नॉट यही होने वाला था, इट इज यही हुआ। When we are taking away, we don't know what will happen, but once the thing happens, we know this will happen। okay, this has happened। so it is like that। this is a very beautiful representation। let me move to another slide। that I told that orthodox representation is correct, but there is another question। what is that question? अगर हम यहाँ पे पार्टिकल हमने मेजर किया और पार्टिकल यहाँ पे मिला, इंस्टेंटली दूसरी बार अगर हम पार्टिकल को मेजर करेंगे तो वो कहाँ मिलेगा, where we will find the particle। and उसमें ये तीनों लोग सरप्राइजिंगली दे आर विथ ईच अदर एंड they will simultaneously say that particle again we will find here only। just after the measurement we will find the particle at the same place। why is it happening? They all give this kind of reason that
once we do the measurement, the wave function which was spread in time, it collapses. It collapses at a single point where we have found the particle, and it peaks around that point. अगर हम फिर से वहाँ मेजरमेंट लेंगे तो फिर से वही मिलेगा, ठीक है? तो इट इज कॉल्ड कोलैप्सिंग ऑफ द वेव फंक्शन. और वेव फंक्शन बाकी सब जगह वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होके यहीं पे वेव फंक्शन का पीक मिलेगा, और यहीं पे हमें पार्टिकल दूसरी बार इफ वी डू इमीडिएट मेजरमेंट विल फाइंड द पार्टिकल. ओके, नाउ let me show this same thing in 2 dimensions. So if this is a wave function, and जैसा wave function है, if this is a wave function, if this is a wave function, then when we are measuring, and if we find the particle here, then the whole wave function is collapsed. ये टेंट में से एक स्टिक बन गया, टेंट में से एक स्टिक बन गया जो कि सिंगल पॉइंट पे है. मैथमेटिकली इट इज डेल्टा फंक्शन एक्चुअली, बट ये टेंट में से स्टिक बन गया. Okay, so again I want to emphasize that measurement is the most beautiful thing about quantum mechanics, that measurement do not only disturb the system, they produce themselves. Okay, now अगर ये wave function collapse हो गया तो क्या होगा? Then here comes the again मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करी थी. Then the wave function will evolve. Again, it will spread out in space, and as the time will pass. मतलब कि अगर wave function collapse हो चुका था तो ये same जो wave function है, तो जैसे ही time pass होगा वैसे इस equation के according, जैसा इसमें potential होगा उसके according again वो spread होगा space में. और अगर wave function ऐसा था तो वापस ऐसा भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है. It depends on potential at that time. Okay, so wave function always collapses. अभी यहाँ पे मैं फिर से इस बात पे आता हूँ जो मैंने छोड़ी थी. वहाँ मैंने कहा था कि इसमें अगर हम मेजरमेंट करेंगे और हमने प्रोब डाला, फिर हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा सिस्टम को सेटल होने के लिए. सेटलमेंट टाइम वाज बिकॉज कि वो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन फिर से टाइम में स्प्रेड होगा श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फिर से हम मेजरमेंट कर सकते हैं. बट यहाँ पे बहुत छोटी सी लाइन, मतलब इसे बोल सकते हैं थोड़ी चिंता की रेखा है यहाँ पे. तो क्या है कि चिंता की रेखा ऐसी है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन टाइम में जो स्प्रेड हुआ, एज टाइम पासेस वो स्पेस में जब वापस से स्प्रेड हुआ कोलैप्स होने के बाद, हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ मेजर किया, फिर हमने फिर से उस सिस्टम को टाइम दिया मेजर करने के लिए, सेटल होने के लिए, तो फिर से वो जब बनता है, फिर से वो जो उसका वेव फंक्शन जो स्प्रेड होता है वो अगर किसी और एनर्जी स्टेट में चला गया, किसी और टाइप का वेव फंक्शन हो गया due to some any of the effects, then we cannot produce the same results again. ठीक है, तो इसके लिए it is always advised to prepare identical systems, कि हम सारे ऐसी बॉटल्स बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम स्टेट में हो, इसी एनर्जी में हो, इसी एनर्जी में हो, इसी एनर्जी में हो, इसी एनर्जी में हो, ऐसा कुछ. हम इलेक्ट्रॉन को इस बॉटल में रख के इतनी बहुत सारी सिस्टम्स बनाएंगे, बहुत सारी सिस्टम्स में अलग-अलग पोजीशन पे एक्सपेरिमेंट करेंगे. मतलब पहले सिस्टम में इस पोजीशन पे, दूसरी में इस पे, तीसरी में इस पे, चौथी में इस पे. In Griffiths there is a beautiful example given. एक बॉटल में एक पार्टिकल है और सब बहुत सारी बॉटल्स रखी हुई है रैक पे. सारे स्टूडेंट्स, हम जैसे स्टूडेंट्स मिलके उस पार्टिकल का पोजीशन निकालते हैं, और वो जो पार्टिकल का पोजीशन होगा वो क्या देगा, वो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देगा. हमें पता चलेगा कि इस पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट पे पार्टिकल हमने, अगर हमारे पास आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड 100 सिस्टम्स है, इस पॉइंट पे अगर 20 बार पार्टिकल मिला 20 अलग-अलग स्टूडेंट्स को, तो हमें पता चलेगा कि वो जो पार्टिकल है वो यहाँ पे उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी 20% है, और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी अगर नहीं मिला तो 0%. ठीक है, बस. तो यहाँ पे ये चीज समझना जरूरी था आइडेंटिकली प्रिपेयर्ड सिस्टम्स में मेजरमेंट, कि हमें मेजरमेंट अगर सिंगल सिस्टम में करना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, because wave function will spread in time. ये सारे wave function will spread in space with respect to time, but वो same state में आएगा ऐसा जरूरी नहीं. So it is always advised to think about multiple identical systems, identically prepared systems. अभी मैं आगे बढ़ता हूँ. This is the joke. This is that I received this from a friend, and this is some setup. Whatever I had to tell
some setup, that it was our act of measurement that made this yellow square into the green circle. Now just quickly I will answer this question, why we are seeing this effects in electron only, why not in us, we are also matter. So let us see this example, which is example of Arthur Basel, and this is very standard example, you can find this in any book. So we want to find the de Broglie wavelengths of 46 gram golf ball with this much velocity and electron with this much velocity. We find that velocity of wavelength of the ball is this much, the wavelength of the electron is this much. Now let us see the difference. This is in 10 raised to minus 34 मीटर. मतलब अगर बॉल का साइज इतना भी है तो उसका जो वेव है इट इज वेरी शार्पली नैरो, तो उसका जो पीक है वेव का इट इज वेरी शार्प एट दिस पॉइंट ओनली. उसका जो वेव फंक्शन मिलेगा उसका जो पीक है वो इट इज दिस पॉइंट ओनली. ठीक है, इट इज एट दिस पॉइंट ओनली. वेव जो है वो इसी पॉइंट पे मिलेगा. और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन का wavelength है it is of the order of atomic radius, it is 0.73 angstrom and atomic radius is 0.53 angstrom. So अगर हम दो तीन wavelengths की भी बात करें, अगर वो wave दो तीन wavelengths long होगा, if it is 3 wavelengths long wave of electron, then also it will spread out till this point. Single electrons waves will spread out this point. This is the nucleus of atom and this is the orbit of atom, so it will spread out here till here. Okay, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी साइज के कंपेयर में, उसकी जो पाथ ऑफ मोशन है उसके कंपेयर में उसका जो वेव का वेवलेंथ है इट इज वेरी लार्ज. और बॉल की साइज के कंपेयर में, उसके पाथ के कंपेयर में उसका जो वेवलेंथ है इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल. मतलब कि अगर वो इस वेव फंक्शन की वेवलेंथ ये है, दिस इज द वेवलेंथ ऑफ वेव फंक्शन, तो वेव फंक्शन की वेवलेंथ 10⁻34 है. मतलब कि वो वेव फंक्शन बहुत ही, बॉल की साइज इतनी है तो वेव फंक्शन यहीं पे रहता है, वो बॉल के रीजन में ही रहता है. मतलब अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो बॉल कभी नहीं मिलेगा. यहाँ पे वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है, यहाँ पे वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 है. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्योंकि वहाँ पे उसकी फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है. ओके, सो व्हाई इलेक्ट्रॉन व्हाई नॉट बॉल, आई थिंक इट इज क्लियर. एंड नाउ आई हैव टू टेक यू somewhere else. I have to take you to somewhere else, that industrial application of this wave nature of electron. So just stick to the same example. We are sticking to the same example, and we are we have to find this de Broglie wavelength, and this we have found. Okay, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ एक्स रे के रीजन में. अभी मैं आपको एक नई बात बताता हूँ. आई थिंक रिजॉल्विंग पावर के बारे में सबको पता होगा. रिजॉल्विंग पावर मींस कि दो चीजें कितनी पास में जितनी है, कितनी पास में दो चीजें हम देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. पास में पास हम कितना देख पाएंगे, विजिबिलिटी कितनी अच्छी होगी हमारी, दैट इज कॉल्ड द रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. नाउ रिजॉल्विंग पावर ऑफ विजिबल लाइट और एनीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द वेव. अब डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द वेव पे रिजॉल्विंग पावर डिपेंड करेगा. और डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, हमें मान लीजिए अपने बोन में क्रैक देखनी है, क्रैक अगर मेरे बोन में हो जाती है तो वो क्रैक अगर मुझे देखनी है देन आई हैव टू यूज एक्स रेज. व्हाई आई एम नॉट यूजिंग विजिबल लाइट, बिकॉज़ विजिबल लाइट की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है और जो क्रैक का डायमेंशन है इट हैज टू बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तभी उसका डिफ्रैक्शन होगा, तभी हम उसको इजीली देख पाएंगे. सो डिफ्रैक्शन की ये कंडीशन हमें पता है कि जो वेवलेंथ है किसी भी रेडिएशन की वो कंपेरेबल टू द ऑब्स्टेकल होनी चाहिए, तभी हमें क्लियर डिफ्रैक्शन मिलता है. तो जो एक्सरे है वो बोन जो है हमारा उसमें क्रैक फ्रैक्चर के लिए काम आता है, विजिबल लाइट इज नॉट यूजफुल बिकॉज़ ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड डिफ्रैक्शन पावर. यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल चीज ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो हम ट्यून कर सकते हैं बाय चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, बाय चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी. वो हम चेंज कर सकते हैं. इसकी वजह से इसकी वेवलेंथ जो है वो इस रीजन में कहीं भी हो सकती है. अभी यहाँ पे है, इट कैन रीच टू हियर आल्सो, हियर आल्सो. सो its wavelength can be changed in different by giving it different kinetic energies, so we can use it to see different objects. इससे जो अगर हम इसको लाइट की तरह यूज करना सीख जाए, इससे चीजें देखना सीख जाए, then we will be able to resolve something very better. So the industrial application which was made from this
एग्जाम्पल इज दिस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन होता है और बहुत सारे लेंसेस होते हैं. These are called magnetic lenses. वो मैग्नेट की कॉइल्स होती है और मैग्नेट की कॉइल्स में इलेक्ट्रॉन को हम एक जगह पे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक कॉइल्स में क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, सो वी कैन इजीली कन्वर्ट दिस होल इलेक्ट्रॉन बीम इनटू सम सिंगल प्लेस. उसके बाद हम उसको सैंपल में डालते हैं और वो सैंपल में से जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उसका हम स्टडी करके हम चीजों की इमेजेस की स्टडी करते हैं. This is the property of scanning electron microscope. यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का यूज करते हैं. If electron would not have been wave, it would have been only particle. तो उसका रिजॉल्विंग पावर इतना अच्छा चेंज होने वाला नहीं होता. हम उसका रिजॉल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं. We produce very good images. जैसे कि ये एग्जांपल, ये एक नैनो फाइबर है. नैनो फाइबर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में, मतलब विजिबल लाइट में अगर हम देखते हैं तो ये छोटे छोटे फाइबर्स हैं. अगर दिखेंगे इट इज वेरी गुड, अगर नहीं दिखेंगे तो दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव. अगर नहीं दिखते तो दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव. दिखते हैं तो इट इज वेरी गुड. वही नैनो फाइबर्स को अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 4000 टाइम्स जूम से मैग्निफिकेशन से देखते हैं तो इट लुक्स वेरी क्लियर. ये सारे फाइबर हमें बहुत क्लियरली दिखते हैं, जैसे कोई मकड़ी का जाला. इट इज वेरी क्लियर. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का यूज होता है चीजों को देखने के लिए. सो वी हैव आवर न्यू आई एंड आई एम आल्सो यूजिंग दिस scanning electron microscope in my MSc project. I am actually doing project in thin film. So this thin film, this is a thin film जिसमें नीचे एक ग्लास होता है जिसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं. उस पे हमको एक मटेरियल का एक लेयर डिपॉजिट करते हैं, उस पे लगाते हैं मटेरियल का एक लेयर. तो उस पे डिपॉजिट होता है मटेरियल के लेयर की थिकनेस होती है अराउंड 100 नैनोमीटर. सो इट इज लुकिंग लाइक दिस. ये जो शाइनी पार्ट है वो एक्चुअली डिपॉजिटेड मटेरियल है. इट लुक्स वेरी गुड. इट लुक्स वेरी गुड. बट जब हमने इसका एनालिसिस किया, जब हमने इसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रखा, सो वी सो दिस काइंड ऑफ इमेज. ये छोटे छोटे जो ग्रेन्युलर पार्ट्स है, ग्रेन्युलर रीजन्स है, वो हमें दिखते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में नहीं होता तो इतना अच्छे रिजॉल्विंग पावर से देखना हमें नहीं मिलता. एक्चुअली एक्सरेज का रिजॉल्विंग पावर भी इतना अच्छा है, बट वी कैन नॉट फोकस देम एडिक्वेटली. सो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉन. This is for this image. I would like to thank the Central Instrumentation Facility of my college. But towards the end of the talk, this is a very good application of wave nature of electron. And towards the end of talk, if you were like this before this lecture, what is a wave function? And now you are like this, then well, that sets your quantum mechanical wave function. Then I have served my purpose. I have really served my purpose. But अगर आप लेक्चर से पहले ऐसे थे कि आपको पता था वेव फंक्शन क्या होता है, and now you are like this, what is a wave function? Then also I have served my purpose. Because what is happening is कि रिचर्ड फेनमैन ने कहा था कि if you think you know quantum mechanics, then you don't know quantum mechanics. If you think you know quantum mechanics, then you don't know quantum mechanics. These things are not intuitive. अगर आपको पहले ये चीजें intuitive लगती थी, then they are not. But mathematically we can do it very easily. Mathematically we can find it very easily, and mathematically what is happening is we can easily find this wave function. Okay, so this is our wave function. This is moving towards the conclusion of my talk. If you have moved this way or this way, both is fine with me, but just shoot your questions to me, so I will be able to answer them, or maybe we can discuss. If I am not able to answer, maybe we can discuss, and we have some dignitaries with us who will also help us understand the situation. But here something I want to talk about is success. We all want success. We all want success, and let us assume for a moment that success is like a particle. If it is a particle, it is also a wave by de Broglie's theory. If it is a wave, at every stage of life, success wave function is you can feel the wave function of the success. And whenever you are trying to do something, whenever you are trying to look for the success, you are measuring the success. Sometimes the wave function collapses in your favor and you get the success. Sometimes the wave function collapses at some other place and you get the failure.
but don't lose hope, because wave function will always evolve as per Schrodinger's equation, and we always have finite probability to find the success at our place if we keep looking, keep working, and keep measuring and keep exploring. That was my talk. I really would like to thank these books, ImagesR and GIFR from Google Search, and I really have learned a lot from these books and interaction with my teachers. I really would like to thank. If you have some queries which you cannot answer, which I cannot answer right now, you can share it me in the feedback form, or you can directly write an email to me. Just email ID. Thank you very much.